viewers, welcome back to the channel English Only Zone. Today we'll study a beautiful poem written by Sarojini Naidu, and the name of the poem is In the Bazaars of Hyderabad. Sarojini Naidu was a very famous political figure in the Indian freedom movement, and she was the president of Indian National Congress, and she was also the first woman governor in India. She was given the title Nightingale of India by Mahatma Gandhi because of her beautiful voice. In this poem, In the Bazaars of Hyderabad, Sarojini Naidu wanted to convey the message that India is rich in tradition and it doesn't need any foreign products to be sold in India. And she gives a picture of a bazaar of Hyderabad where traditional Indian products are being sold. So she has written the poem in the form of questions and answers. First, the poet asks the questions, and the merchants give the answer to the questions. And through this technique, she has given a beautiful picture of a bazaar of Hyderabad. The poem contains 5 stanzas, and each stanza has its rhyming scheme. Let's begin with the poem. We will first read the stanza, and the meanings of difficult words are already given here, and then we will move on to the explanation part. Let's begin, and you also have to read the lines along with me. Let's start. What do you sell, O ye merchants? Richly your wares are displayed. Turbans of crimson and silver, tunics of purple brocade, mirrors with panels of amber, daggers with handles of jade. So here the poetess, that is Sarojini Naidu, asks the merchants. Merchants means vyapari. That what are you selling? Your wares. Wares means your objects are richly displayed. Displayed means shown. Your objects are beautifully shown. आपने देखा होगा जो शॉपकीपर्स होते हैं वो अपने शॉप पर बहुत ही अच्छे तरीके से सारे ऑब्जेक्ट्स को सजा कर रखते हैं ना, सो दैट मोर एंड मोर पीपल गेट अट्रैक्टेड टू कम टू देयर शॉप. तो वो मर्चेंट से पूछती हैं कि व्हाट डू यू सेल? Merchants, your wares, your objects are richly displayed, are beautifully, nicely displayed. The merchants reply that they are selling crimson and silver colored turbans. Crimson means deep red color. Crimson means deep red color. So they are saying that they are selling turbans. Turbans means covering for head. That is pagdi. You must have seen pagdi. तो मर्चेंट्स कहते हैं कि वो पगड़ी बेच रहे हैं डीप रेड और सिल्वर कलर की. दे आर ऑल्सो सेलिंग ट्यूनिक्स ऑफ ब्रोकेड. ब्रोकेड इज़ अ मटीरियल. ब्रोकेड की वो ट्यूनिक्स सेल कर रहे हैं, पर्पल ब्रोकेड की. मिरर्स विद पैनल्स ऑफ एम्बर, एंड दे आर ऑल्सो सेलिंग मिरर्स विद येलो ब्राउन पैनल्स. मिरर्स वो सेल कर रहे हैं जिनका जो फ्रेम है वो येलो ब्राउन कलर का है. एम्बर इज़ अ thing with yellow brown color. Daggers with handles of jade, and they are also selling daggers. What are daggers? A type of knife जिनको हम छुरा बोलते हैं. A type of knife with handles of jade. Jade is a hard stone. जो छुरा होता है उसका एक तो आगे का पार्ट तो लोहे का होता है और जो पीछे जिससे जो हैंडल होता है वो जेड का होता है, हार्ड स्टोन का. तो सरोजिनी नायडू मर्चेंट से पूछती है कि व्हाट आर यू सेलिंग. तो मर्चेंट्स उनको बताते हैं कि दे आर सेलिंग टर्बन्स ऑफ डीप रेड एंड सिल्वर कलर, दे आर सेलिंग ट्यूनिक्स ऑफ पर्पल ब्रोकेड मटीरियल, दे आर सेलिंग मिरर्स with the panels of amber, and they are also selling daggers with handles of jade. I hope this stanza is clear to you. Now let's move on to the next stanza. What do you weigh, O ye vendors? Saffron, lentil and rice. What do you grind, O ye maidens? Sandalwood, henna and spice. What do you call, O ye peddlers? Jasmine and ivory dyes. Now, Sarojini Naidu asks the vendors that what are they selling? What are they weighing? Weighing means वो क्या तोल रहे हैं. weigh करना मतलब तोलना. आपने देखा होगा ना, बैलेंसेस होते हैं उसमें weigh करते हैं.
तो वेंडर्स से पूछ रही है व्हाट आर यू वेइंग. So the vendors give her answer that they are weighing saffron. Saffron means kesar. Lentil. Lentil means pulses and rice. They are weighing. They are selling saffron. Saffron means kesar, pulses and rice. What do you grind, O ye maidens? Now poetess asks the maidens. Maidens means unmarried girls. What do you grind? Grind means piece na. So they say they are grinding sandalwood, henna and spice. What is sandalwood? Sandalwood means chandan. Henna means मेहंदी and spice. Spice means मसाले. तो मेडन्स कहती हैं they are grinding, वो पीस रही हैं सैंडलवुड, चंदन, मेहंदी और स्पाइसेस, मसाले. What do you call, O ye peddlers? Chessmen and ivory dice? And then Sarojini Naidu visits the peddlers and asks, What are you calling? आप क्या आवाज़ लगा रहे हो? जो पेडलर्स होते हैं वो आवाज़ लगा लगा कर बेचते हैं ना. पेडलर्स मीन्स जो पैदल चलकर सामान बेचते हैं. आपने देखा होगा आपके घर के बाहर भी सामान बेचने आते होंगे लोग जो पैदल चलकर सामान बेचते हैं. तो वो उनसे पूछती है कि आप क्या आवाज़ लगा रहे हो. तो वो कहते हैं चेसमैन एंड आइवरी डाइस वी आर सेलिंग. चेसमैन. चेसमैन क्या होते हैं? आपने देखा होगा चेस में जो सिपाही जो होते हैं 8 पॉन्स होते हैं ना, तो उनका कोई पॉन. एंड आइवरी डाइस. आइवरी डाइस मीन्स हार्ड वाइट सब्सटेंस. जो हार्ड वाइट सब्सटेंस होता है जिसको हम हाथी दांत भी बोलते हैं. आपने देखा होगा एलिफेंट का जो टीथ होता है, जो बाहर के जो टस्क्स होते हैं वो आइवरी के होते हैं. इट इज़ अ वेरी हार्ड वाइट सब्सटेंस. सो दे से दे आर सेलिंग चेसमैन एंड आइवरी डाइस. लेट्स रिवाइज दिस स्टैंजा. सरोजिनी नायडू पहले वेंडर्स के पास जाती है, उनसे पूछती है कि आप क्या वे कर रहे हैं. तो वो बताते हैं कि दे आर वेइंग सेफ्रन, लेंटिल एंड राइस. फिर वो मेडन से पूछती है कि आप क्या ग्रिंड कर रही हो. तो वो बताती है कि दे आर ग्रिंडिंग सैंडलवुड मतलब चंदन, मेहंदी और मसाले. फिर वो पेडलर से पूछती है कि आप क्या आवाज़ लगा रहे हो. तो वो कहते हैं चेसमैन एंड आइवरी डाइस. अंडरस्टूड दिस स्टैंजा? Now let's move on to the next stanza. Now here in this stanza, Sarojini Naidu is talking to goldsmiths. Who are goldsmiths? जो गोल्ड का वर्क करते हैं, जिनको हम सुनार बोलते हैं ना, जो गोल्ड का वर्क करते हैं और ज्वेलरी मेकिंग का वर्क करते हैं, वो उनसे बात करती है. She asks them, what do you make, O ye goldsmiths? Wristlet and anklet and ring, bells for the feet of blue pigeons, frail as a dragonfly's wing, girdles of gold for the dancers, scabbards of gold for the kings. The goldsmiths answer that they are making wristlet, जो wrist में पहनने के लिए जैसे bracelets होते हैं ना वो. And anklet, anklet means जो पायल होती है, and ring. They are making wristlet, anklet and ring. Bells for the feet of blue pigeons, जो blue pigeons होते हैं उनके फीट में, उनके पैरों में बांधने के लिए वो बेल भी बनाते हैं. अब बेल अगर पिजन्स के पैर में बांध दी जाएगी तो वो उड़ेंगे कैसे. तो वो कहते हैं कि दे आर मेकिंग फ्रेल बेल्स एज अ ड्रैगन फ्लाइज विंग. वो बेल इतनी हल्की, इतनी फ्रेल, इतनी वीक बनाते हैं जैसे कि एक ड्रैगन फ्लाई का विंग होता है. आपने देखा होगा ना, ड्रैगन फ्लाई लंबी सी बॉडी होती है, इंसेक्ट होता है ये विद अ लॉन्ग थिन बॉडी, और उसका जो विंग होता है वो बहुत ही हल्का सा होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा विंग होता है. तो दे आर सेइंग दैट दे आर मेकिंग बेल्स ऑल्सो फॉर ब्लू पिजन्स एंड द बेल्स आर एज वीक एज अ ड्रैगन फ्लाइज विंग. गर्डल्स ऑफ गोल्ड फॉर द डांसर्स. जो डांसर्स होते हैं आपने देखा होगा उनकी वेस्ट पर, उनकी कमर पर एक बेल्ट होती है ना, गोल्डन बेल्ट, तो वो गर्डल्स बना रहे हैं. एंड स्कैबर्ड्स ऑफ गोल्ड फॉर द किंग्स. और जो किंग होते हैं उनके लिए स्कैबर्ड्स. स्कैबर्ड्स मीन्स कवर ऑफ द सोर्ड. तलवार को रखने का जो कवर होता है वो बना रहे हैं किंग्स के लिए. इन हिंदी वी कॉल इट म्यान. कहते हैं ना म्यान में तलवार रखी जाती है, तो वो जो म्यान होती है या जो स्कैबर्ड होता है, जो स्वॉर्ड का जो कवर होता है, वो भी गोल्डन बना रहे हैं किंग्स के लिए. ठीक है. तो गोल्डस्मिथ्स बताते हैं कि वो रिस्टलेट, एंकलेट, रिंग, बेल्स फॉर ब्लू पिजन्स एंड गर्डल्स for dancers and scabbards for the kings. These things they are making. Now let's move on to the next stanza. What do you cry, O ye fruitmen?
citron, pomegranate and plum. What do you play, O ye musicians? Sitar, sarangi and drum. What do you chant, O ye magicians? Spells for the aeons to come. Now she is asking fruitmen, जो fruit sellers होते हैं ना, she is asking fruitmen, what do you cry? Cry means आप क्या आवाज़ लगा रहे हो? So they say they are calling out citron, pomegranate and plum. Citron, pomegranate और plum ये सब fruits होते हैं. Pomegranate अनार और plum जिसको हम आलू बुखारा बोलते हैं ना, और citron भी एक fruit होता है. What do you play, ओ ये musicians? सितार, सारंगी एंड ड्रम. और फिर वो म्यूजिशियन से पूछती हैं कि आप क्या प्ले कर रहे हो, आप कौन सा म्यूज़िक बजा रहे हो, म्यूज़िक से आप मतलब किस चीज़ से आप म्यूज़िक बजा रहे हो. सो दे से दे आर प्लेइंग सितार, सारंगी एंड ड्रम. दीज ऑल थिंग्स आर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. एंड देन शी आस्क्स मैजिशियंस, जो मैजिशियंस मैजिक जो करते हैं, वो उनसे पूछती हैं आप क्या चैंट कर रहे हो. चैंट किसी भी चीज़ को लगातार रिपीट करना. जैसे हम मंत्र पढ़ते हैं ना, तो मंत्र को हम रिपीट करते हैं, तो वी से दैट वी आर चैंटिंग मंत्रास. मंत्र को चैंट करना, तो जैसे जपना होता है. तो मैजिशियन से पूछती हैं आप क्या चैंट कर रहे हो, तो कहते हैं दे आर चैंटिंग स्पेल्स फॉर द एऑन्स टू कम. एऑन्स मीन्स डिवाइन पावर. दे वांट सम डिवाइन पावर टू कम. मैजिशियंस डिवाइन पावर के लिए कोई मंत्र चैंट कर रहे हैं. लेट अस सी द इमेज ऑफ सारंगी. दिस इज सारंगी. ठीक है. सितार इज़ जस्ट लाइक गिटार. गिटार से थोड़ा इंडियन वर्जन का होता है. गिटार हमारा वेस्टर्न म्यूज़िक में होता है, सितार इंडियन म्यूज़िक का है. और जो ड्रम है, ड्रम तो यू नो वेल व्हाट इज़ ड्रम. एंड दिस इज़ सारंगी. तो यहाँ पर सरोजनी नायडू फ्रूटमैन से बात करती है, म्यूजिशियन से और मैजिशियन से बात करती हैं. फ्रूटमैन बताते हैं वो सिट्रन, पॉमीग्रेनेट और प्लम बेच रहे हैं. म्यूजिशियन सितार, सारंगी और ड्रम बजा रहे हैं. और मैजिशियंस स्पेल्स चैंट कर रहे हैं सो दैट some divine power may come to them. Okay, I hope these paragraphs are clear. Now let's move on to the next paragraph. What do you weave, O ye flower girls? With tassels of azure and red, crowns for the brow of a bridegroom, chaplets to garland his bed, sheets of white blossoms new garnered to perfume the sleep of the dead. Now in this stanza, Sarojini Naidu is talking to the flower girls. उन गर्ल्स से वो बात कर रही हैं जो फ्लावर्स वीव करती हैं, फ्लावर्स की मालाएं बनाती हैं. उनसे पूछती है कि आप क्या वीव कर रहे हो, आप क्या किसकी माला बना रहे हो. विथ टेसल्स ऑफ एजर एंड रेड. टेसल्स मीन्स हैंगिंग थ्रेड. हैंगिंग थ्रेड आपने देखा होगा कि बहुत सारे ड्रेसेस में, गर्ल्स की ड्रेसेस में ऐसे टेसल्स आते हैं, उनके ऊपर नॉट बंधी हुई होती है. बहुत सारे पतले पतले थ्रेड्स होते हैं और उनके ऊपर नॉट बंधी हुई होती है, उनको हम टेसल्स बोलते हैं. टेसल्स ऑफ एजर. एजर मीन्स ब्राइट ब्लू कलर, लाइक द कलर ऑफ स्काई. एंड रेड. वो पूछती हैं आप ब्राइट ब्लू और रेड कलर के टेसल से आप क्या वीव कर रहे हो. तो वो कहती है दे आर वीविंग क्राउन्स फॉर द ब्रो ऑफ अ ब्राइड ग्रूम. वो एक ब्राइड ग्रूम, हु इज़ अ ब्राइड ग्रूम. ब्राइड ग्रूम इज़ जिसको हम दूल्हा बोलते हैं. तो वो कहती है कि दे आर मेकिंग क्राउन्स, उनके लिए क्राउन बना रही हैं ब्राइड ग्रूम के लिए. चैपलेट्स टू गार्लैंड हिज बेड, and they are also making garlands for his bed. Sheets of white blossoms new garnered, and they are also making sheets of new white flowers. New garnered means newly brought. वो नए खरीदे हुए white flowers से वो sheets बनाती हैं for the dead man's grave. वो dead man की grave के लिए वो newly brought white flowers से वो sheet बनाती हैं. तो यहाँ पर सरोजनी नायडू फ्लावर गर्ल्स से पूछते हैं कि आप क्या बनाते हो ब्राइट ब्लू और रेड कलर के थ्रेड से. तो वो कहती हैं कि हम ब्राइड ग्रूम के लिए क्राउन बनाते हैं, उनके लिए पगड़ी बनाते हैं, उसके बेड के लिए हम गार्लैंड बनाते हैं, उनके बेड को डेकोरेट करने के लिए गार्लैंड बनाते हैं. एंड ऑल्सो जो डेड लोग होते हैं, जिन पीपल की डेथ हो जाती है, उनकी ग्रेव के लिए, उनकी कब्र के लिए, उसमें परफ्यूम के लिए, उसमें खुशबू देने के लिए वो वाइट फ्लावर्स की शीट्स भी बनाते हैं. जो आपने देखे होगा ना, वाइट फ्लावर्स की चादरें होती हैं,
लंबी सी चादर जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स थ्रेड से जुड़े हुए होते हैं, तो वो चादर बनाई जाती है टू परफ्यूम द स्लीप ऑफ द डेड, डेड लोगों को खुशबू पहुंचाने के लिए, उनको खुशबू देने के लिए. सो दिस वॉज ऑल इन द पोम. In this poem, Sarojini Naidu represents an Indian market, and she is giving a sense that Indian market is rich in its heritage. And through this poem, actually, she was protesting against the foreign products, especially the European products. और अभी भी, आज भी हमें इंडिया में ऐसी पोम्स पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आज भी हम देख रहे हैं कि इंडियन मार्केट में फॉरेन प्रोडक्ट्स बहुत सारे आ गए हैं, और जो हमारे इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं या फिर जो इंडियन मर्चेंट्स हैं, उनके प्रोडक्ट्स इतने नहीं सेल हो रहे हैं. एंड टू मेक आर इंडिया मोर फेमस, टू मेक आर इंडिया डेवलप्ड, वी नीड टू बाय इंडियन गुड्स एंड we need to ban foreign goods. Okay, so this poem this poem is actually a protest for all the European products which were coming in Indian market during that time. I hope you have understood this poem, and if you have any doubts, you can write in the comment section. I will try my best to clear your doubts. I hope you liked the explanation. If you have liked, then you can click on the like button, and also subscribe to the channel if you have not yet subscribed. Thank you so much.